Our dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start again exercise 8b. This is the your next part of this exercise. We can say that this is the second part of this exercise. Okay. Before it we have to know about the methods and till to the question number 5. So today we are start from question number 7. Question number 7 from this exercise says that if 36, 54, x are in continuous proportion, find the value of x. Okay student. Question's meaning is that there are three numbers is given 36, 54 and x. And then they are in continuous proportion form. So we have to solve, we have to find the value of x. We know that if any numbers, if the numbers are in continuous proportion, then we can write the middle numbers in 2 times. Okay. So as solution of 7th question, first number is 36. Okay. 36, 20, 20, 36, 54 and x are in continuous proportion. Continuous proportion. This is given. Okay student. So there are solution is that 36 okay is to 54 as we have write again 54 in the case of continuous proportion and to find the third proportion also. After that x. Okay. There are also apply the product of strings is equal to product of names. Product of extremes is equal to product of names. Okay. Extreme 36 and x. Okay. 36 into x means 54 into 54. After that we have to write this question, this step in the form of 54 into 54 upon 36 because 36 here is in the form of multiply. Okay. So after that, after transposing, this becomes in the form of dividing, means denominators. Okay. 4, 9 4s are 36, 9 6 are 54. Okay. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 27s are 54. Okay. X is equal to 27 multiply 3. X is equal to 81. That's your answer. Okay student. Question number 8, same answer. Okay. So question number 8, do yourself. Okay student. I have written here question number 8. Question number 8 is that if 27, 36 x are in continuous proportion, find the value of x. Okay. Do yourself. Question number 8, 27, 36 x are in continuous proportion. Then find the value of x. Value of
एक्स। बेटा यहाँ से एक्स की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, और उससे क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, तो इसको आप सॉल्व करिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। ओके, थर्ड प्रोपोर्शनल सेम आपका ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के जैसा ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आपको जिसको फाइंड करना रहता है वो उसको राइट कर लेता है मीन्स लास्ट में, जैसे इन द फॉर्म ऑफ एक्स राइट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शन रहेगा, केवल 2 आपको नंबर्स गिवन रहेंगे और थर्ड वाले को आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले को हम एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। और जो हमको पेयर गिवन रहेगा नंबर्स का, तो उस पेयर में सेकंड वाले को हम मेन में राइट कर रखेंगे, ठीक है ना, मेन नंबर्स के प्लेस में, मेन टर्म्स के प्लेस में। जैसे यहाँ पे बेटा कह रहा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट पेयर है 8 एंड 12, 8 एंड 12, थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। सॉल्यूशन, we can write this in the form of 8:12 as 12 is to x। थर्ड प्रोपोर्शन को हमने x सपोज कर लिया, ठीक। तो देखो बेटा यही हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बेटा इधर क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 8, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3, एक्स इज इक्वल टू 6 3 जा 18। This is the third proportional of this number, okay? सेम ऐसे ही बेटा आपको करना है, ठीक। डू योरसेल्फ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है, और यहाँ पे 2 पार्ट हैं उसको आपको करना है। 12 एंड 18 सेकेंड है, 12 एंड 18 का, एंड नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड है बेटा आपका 4.5 एंड 6, और इसी को आप ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की डालेंगे, ये हो जाएगा 10 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये हो जाएगा 45 एंड 60, ओके। इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी राइट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप डेसिमल पॉइंट में भी रहने देंगे, डेसिमल फॉर्म में भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक। ओके बेटा, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, if the third proportional to 7 and x is 28, ठीक है ना। if the third proportional to 7 and x is 28, थर्ड प्रोपोर्शनल बेटा गिवन है और नंबर कौन कौन से हैं 7 एंड x।
मैंने बताया जो सेकंड वाला नंबर रहता है उसको हम कितने टाइम राइट करते हैं, 2 टाइम राइट करते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल को राइट करते हैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू गिवन है तो उसको पुट करेंगे, अदरवाइज अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू जब नहीं गिवन रहती है तो उसके प्लेस पे हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं। ठीक, दैट्स कोई भी मीन्स लिटरल डिजिट को सपोज कर लेते हैं, लिटरल नंबर को, और वही लिटरल नंबर्स को वहाँ पे राइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो वैल्यू को राइट करेंगे। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 10 में देखिएगा ये बेटा आपका नंबर्स है 7 एंड x है, 7 एंड x, ये दो नंबर है। और थर्ड प्रोपोर्शनल है आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल 28, और फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हमने बताया जो सेकंड वाला नंबर होता है उसको कितना टाइम राइट करते हैं, 2 टाइम, और वो मेन में होता है आपका 7:x एज x:2। थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू गिवन है बेटा, यहाँ पे 28 गिवन है तो हम 28 को राइट कर देते हैं। दैट्स फाइन। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। चाहे हम पहले प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग राइट करें, चाहे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को राइट करें, बाद में चाहे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को राइट करें या फिर प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को राइट करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे बोथ आर सेम टू ईच अदर। ओके, सो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 7। ओके बेटा, अब देखो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। और इसको हम ये राइट कर सकते हैं 27 को 2 मल्टीप्लाई 7, कितना राइट कर सकते हैं, 2 to the 4, 4 7 जा 28, और ये ऑलरेडी 7 है। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड टेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 7 to 7। देखो पेयर बन गया बेटा, जितना पेयर बन जाता है वो आउट हो जाएगा ब्रैकेट से, तो 2 मल्टीप्लाई 7, x इज इक्वल टू 7 to the 40। ये बेटा इसका आंसर हो गया x की वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, है स्टूडेंट, फाइंड द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन। तो यहाँ पे बेटा मेन प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है, जो नंबर का पेयर है वो गिवन है। पहला पेयर क्या है बेटा, पहला पेयर है यहाँ पे 6 and 24, 6 and 24। अब यहाँ से देखिएगा बेटा, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 24 is x सपोज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे x सपोज कर दिया, x राइट कर दिया। देयरफॉर अब देखिएगा मेन प्रोपोर्शनल में बेटा मैंने बताया है, जो आपका मेन प्रोपोर्शनल अगर फाइंड करना है तो मेन में मतलब मिड में क्या रहेगा, x रहेगा, और मीन्स जो भी आप लिटरल डिजिट को सपोज कर लो वो 2 टाइम रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 6:x एज x:24। ठीक, फिर से प्रोसेस वही, प्रोडक्ट ऑफ
means is equal to product of extremes। वही फॉलो करा देते हैं बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मीन्स मेन प्रोपोर्शन हमको फाइंड हो जाएगा। तो ये देखो मेन है x इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 6, ये हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो इसको हम राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 टू द 4 6 जा 24 इंटू 6 ऑलरेडी है। स्क्वायर रूट बोथ साइड में हम टेक कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यही नंबर। तो देखो एक पेयर बन गया। तो एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, एक्स इज इक्वल टू 12। दिस इज द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ दैट टू नंबर्स, मीन्स इन दोनों नंबर्स की बिटवीन का मेन प्रोपोर्शनल 12 हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप राइट ही कर दें और इसके बेस पर दो और क्वेश्चन हैं उसको भी आप कर लेंगे, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना। सेकंड है बेटा डू योरसेल्फ, इसको खुद से करना रहेगा आपको। सेकंड इसका पार्ट है 11 का, ये है 3 and 27, 3 and 27। तो इसके बिटवीन भी ऐसे ही सब कुछ कर लेना एक्स, फिर इस सेंस में 3 यहाँ पे रहेगा, 27 यहाँ पे रहेगा, बीच में तो एक्स एक्स आएगा, ये तो पता है। और ये थर्ड वाला है बेटा आपका, कौन सा नंबर है, 0.4 एंड 0.9, 0.4 एंड 0.9। ठीक बेटा, इस नंबर्स को ऐसे भी राइट कर सकते हो, 10 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 and 9 हो जाएगा, 4 and 9। इनके बिटवीन भी ऐसे आप सपोज कर लेंगे 4 and 9, और यहाँ मिड में एक सपोज कर लो, मीन्स तो इसका मेन प्रोपोर्शन हो। ठीक, तो इसको भी बेटा आपको कर लेना रहेगा। अब बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं देखते हैं। What number must be added to each of the numbers 5, 9, 7, 12 to get the numbers which are in proportion। ठीक, क्वेश्चन ये कर रहा है कि 5, 9, 7 और 12 में हम क्या ऐड कर दें कि ये नंबर प्रोपोर्शन फॉर्म में हो जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं एक्स को हम ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में हो जाता है। लेट एडेड नंबर बी देन 5 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक, 6 प्लस x हो जाएगा, सॉरी 5, 9 प्लस x हो जाएगा, 7 प्लस x हो जाएगा एंड 12 प्लस x हो जाएगा। अब इनको जैसे ही ऑर्डर में उसी ऑर्डर में इनको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोपोर्शन फॉर्म में। तो 5 प्लस x is to 9 plus x as 7 plus x is to 12 plus x। Okay student, अब product of means is equal to product of strings। Product of means is equal to product of strings।
इसी पे हम पुट कर देते हैं। मीन्स में बेटा ये दोनों, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स। ओके, और इधर इक्वल कर लो बेटा, ये हो जाएगा 5 प्लस स्ट्रीम यही दो ना, 5 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। अब बेटा यहाँ पे देखें तो इनका जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो पहले बेटा 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो, फिर x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो। चलो ठीक है, पहले मैं 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेता हूँ, या फिर आप 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो, फिर x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो। चलो 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में मैं करता हूँ, 7 9 जा 63, ठीक है ना, और 7 और यहाँ प्लस साइन प्लस लगा दिया, 7 इंटू एक्स 7x, फिर बेटा यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9x आ जाएगा, फिर बेटा यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, x का मल्टीप्लाई x होगा तो x स्क्वायर होगा। क्लियर, ये इधर होगा। अब बेटा अभी इधर करते हैं, ठीक, 12 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों टर्म में करते हैं, 12 5 या 60 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 12 का मल्टीप्लाई x होगा तो 1 12x हो जाएगा। ये हो गया प्रोसेस। अब x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, हम प्लस साइन है प्लस लगा देते हैं, x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये बेटा 5x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई x होगा तो x स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये वाला x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप अगर दोनों साइड सेम वैल्यू है और सेम साइन के हैं, ठीक, इक्वल साइन के बोथ साइड, तो उनको आप कट कर सकते हैं, ठीक, सेम साइन के होने चाहिए और सेम लाइक टर्म्स होने चाहिए, ठीक, ये कैंसिल होगा क्योंकि कोई भी दूसरी तरफ जाएगा उसका साइन चेंज होगा, तो जब साइन वो अपोजिट साइन के होंगे तो वो कैंसिल होगा। अब एक्स वाले टर्म को बेटा इस साइड में कर लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म को उस साइड में कर देता हूँ। देखो 12 और 5 इधर आ जाएंगे, चलो अभी इसको कर लेता हूँ, 60 प्लस 12 प्लस 5 17, ठीक है ना, और इधर क्या बचेगा 63 प्लस 7 9 16, ठीक, ये 16x को उस साइड है और 60 को इधर ले जाते हैं, तो इधर मेरा 63 है, 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर 17x है पहले से, 16x इधर जाएगा माइनस 16x हो जाएगा, 17 से 16 जाएगा बचेगा 1x और 1 का मल्टीप्लाई x से करते हो तो x ही आता है, x राइट कर देंगे। अब 60 है और ये 63 से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेटा बचेगा 3, मीन्स x की वैल्यू हो गई 3। ये हो गया आपका आंसर, x की वैल्यू को फाइंड करना। तो मतलब ये जो नंबर्स हैं 5 9 7 एंड 12, अगर इन सभी नंबर्स में हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ओके। और बेटा क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसे ही है, बस उसमें क्या करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो प्रोसेस आपका यही रहेगा, स्ट्रीम इंट्रीम बहुत सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो 13 के लिए भी मैं रीड कर दे रहा हूँ, 13 के लिए क्वेश्चन क्या है और आपको करना रहेगा। 13 है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 10 12 19 24 टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन, ठीक। तो यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्टेड राइट कर लो, बस लेट सब्ट्रैक्टेड नंबर भी है, तो यहाँ पे आपका जो है 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स और 24 है बेटा, यस 24 माइनस एक्स हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ये हो जाएगा।
इसी के फॉर्म में आपको यहाँ पे भी वही सारे प्रोसेस रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप 10 माइनस एक्स, यहाँ पे आप 12 माइनस एक्स, यहाँ पे आप 19 माइनस एक्स और यहाँ पे आप 24 माइनस एक्स, यही करके ये प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो है कि वही आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में, ये देखिए 12 माइनस एक्स और ये 19 माइनस एक्स, ये कर देंगे इधर 10 माइनस एक्स एंड 24 माइनस एक्स हो जाएगा स्ट्रिंग में। बस इसके बाद आपको ये सॉल्व कर लेना रहेगा, ठीक है बेटा। इसको आगे आप प्रोसेस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको कर लेना रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक, क्लियर है, ओके बेटा। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फर्दर सॉल्व इट, सॉल्व इट, ओके। इसके आगे सॉल्व कर लेना है बेटा इसको। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 50 lakh, ठीक है ना। वन इज टू 50 lakh. What is the actual distance between two towns if they are 4 centimeter apart on the map? ओके स्टूडेंट, तो देखो बेटा बिल्कुल इजी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 50 lakh है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है ना, 50 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब बेटा इसको हम क्या कर लेते हैं, 50 लाख सेंटीमीटर है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, बड़े यूनिट से, मींस स्मॉल यूनिट को जब बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करते हैं। हंड्रेड से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो बेटा 1000 जब मीटर में वैल्यू आ जाएगी, मीटर में आने के बाद वैल्यू को अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे वो किलोमीटर में हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो देखो ये किलोमीटर की वैल्यू हो गई। अब इसको 2 0 यहाँ से, ये 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, मीन्स ये हो गया 50 किलोमीटर। मैप पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है कि 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। देयरफॉर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 50 किलोमीटर, ठीक। ये 4 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 50 किलोमीटर, 4 5 जा 20 मीन्स 200 किलोमीटर। ये हो जाएगी मैप पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल डिस्टेंस 200 किलोमीटर को, ठीक है ना। ये क्लियर, ये बेटा इसको राइट कर लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8B का, ठीक है ना, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
Question number 15, student. At a certain time, a tree 6 meter high cast a shadow of length 8 meters. At the same time, a pole cast a shadow of length 20 meters. Find the height of the pole. Okay, student. तो हम यहाँ पे height of the pole को find करना है, उसको हम सपोज कर लेते हैं. Let height of the pole, let height of the pole be x meter. Okay, x meter इसको सपोज करते हैं. Therefore, according to question, यहाँ पे गिवन क्या है बेटा? यहाँ पे गिवन है हाइट ऑफ ट्री, इसको हम प्रपोर्शन फॉर्म में करते हैं. हाइट ऑफ ट्री इज टू शैडो ऑफ ट्री. ठीक है ना? शैडो ऑफ ट्री. As height of pole is to height of चलो इसमें भी हाइट ऑफ कर लेंगे ना. हाइट ऑफ शैडो ऑफ ट्री. ठीक, हाइट ऑफ शैडो ऑफ पोल. क्लियर? तो देखो सबसे पहले बेटा हाइट ऑफ ट्री कितना गिवन है? हाइट ऑफ ट्री है 6 मीटर. ठीक, 6 है इस टू 6 मीटर है ना. इस टू हाइट ऑफ शैडो ऑफ ट्री कितना है बेटा? वो है 8 मीटर. इसको बेटा 8 मीटर कर लिया. एज हाइट ऑफ पोल कितना है बेटा? हाइट ऑफ पोल तो हमको फाइंड करना है, इसको हमने एक्स सपोज कर लिया. इस टू हाइट ऑफ शैडो ऑफ पोल कितना है बेटा? हाइट ऑफ शैडो ऑफ पोल है 20 मीटर्स. अब बेटा इसके बाद देखो वही हो जाएगा प्रोसेस, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अब यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है बेटा? ये है 8 मीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या है? 6 मीटर इंटू 20 मीटर. ओके बेटा, ये एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो 6 मीटर इंटू 20 मीटर. ओके, और ये बेटा हो जाएगा 8 मीटर आपका जो है कि डिवाइड कर जाएगा. अब देखो 1 मीटर की वैल्यू को हम कट कर देते हैं. 1 मीटर ओनली 1 मीटर कैंसिल हो गया. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. यहाँ पे बचा क्या बेटा? x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मीटर, जस्ट 1. 5 3 जा 15 मीटर. ये बेटा आपका आंसर है. ठीक, यही हाइट ऑफ द हो गया पोल. आंसर है और पूरे चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था. सॉल्यूशन फिनिश.